Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us our mail ID, that is the SB Scholars Academy @gmail.com. You can follow us on Facebook page, Insta page, and also can join our Telegram group for more updates. We are providing the previous year question bank, practice set question bank, that is the combined or individual branches of home science. Similarly, we are also providing the quick revision note, that is also combined and individual branches. For that you can write us on our mail ID, that is the SB Scholars Academy @gmail.com, and you can also WhatsApp our number, that is the 7426888640. So today we will discuss about the synthetic dye. As you all know that we will continuing with the types of dye, what is dye, classification of dye. These things are covered in the past video. Today we will discuss about the synthetic dye. You can go through the playlist of textile in this channel. You can check the playlist. So there are subject wise playlists are mentioned, and from there you can check how many textile videos are updated regarding the syllabus of the NTA NET JRF Home Science. So from there you can also learn the other topics and other previous topics related to the dye. In this video we have discussing about the synthetic dye. What is the synthetic dye, what things are come in synthetic dye. So firstly we will discuss about the synthetic dye कि synthetic dye क्या होती है. When we are talking about the synthetic dye is were first derived from the coal tar in 1856. जब हम synthetic dye की बात करते हैं तो synthetic dye जो होती है वो सबसे पहले कहाँ से निकल के आई, कोल तार. This may be vary book to book or various things are right on this topic where it is derived, but we are selecting this one because it is someone authentic in right in the book. So सिंथेटिक डाई जो होती है वो सबसे पहले कोल तार से डिराइव हुई थी इन द ईयर ऑफ 1856. सिंथेटिक डाइज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इम्प्रूव्ड एज ब्यूटी ऑफ कलर एंड कलर फास्टनेस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक डाई, तो द मेजर थिंग कम्स इन द माइंड, दैट इज द सिंथेटिक डाई आर इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ कलर एंड कलर फास्टनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ द फैब्रिक. जब भी आप कभी सिंथेटिक डाई को यूज़ करते हैं फैब्रिक पे, द बेसिक एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डाई दैट कि उसकी जो कलर ब्राइटनेस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बहुत लेस या बहुत कम वो फेडेड होता है और ब्राइट कलर प्रोवाइड करता है. दे आर मोस्टली एक्सेप्टेड ऑफ देयर ब्राइट कलर एंड फास्टनेस प्रॉपर्टी. तो जैसे वो फेड कम होता है, उसकी जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक फैब्रिक की फास्टनेस जो होती है वो ड्यूरेबल होती है. तो दीज थिंग्स आर कम अंडर एज अ सिंथेटिक डाइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंथेटिक डाई. सो दैट्स व्हाई नाउ द डेज पीपल आर मूविंग फ्रॉम मोर एंड मोर फॉर द सिंथेटिक डाई कंपेयर टू द नेचुरल डाई, अंडर विच vegetable dye or mineral dye or fruit dye are coming. So in this era we are particularly going with the synthetic dye because of its color and fastness property. So today we will discuss about the how many types of synthetic dyes are present. So there are various dyes are present, synthetic dyes present, similar such as basic dye, acid dye, direct dye, naphthol dye, azo dye, modern dye, wet dye, dispersed dye, sulfur dye, reactive dye, and pigment dye. This is some type of dyes, synthetic dyes which are presently used by the industries or textile industries workers for dyeing the fabric. So what the thing कि these dyes are basically used for the fabric. It's depend upon the fabric properties or dye properties कि which one you are using for which of the fabric. So it is a matter of fabric property or dye property कि which dye is suitable for the fabric. So जब हम synthetic dye की बात करते हैं तो this is very important that synthetic dye क्यों यूज़ होती है. The basic purpose of the synthetic dye कि उसकी जो कलर फास्टनेस होती है और जो ब्राइटनेस ऑफ कलर होती है वो अच्छी होती है कंपेयर टू द नॉर्मल डाई. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एज अ अप्लाइड क्वेश्चन कि क्यों यूज़ करते हैं. असर्शन एंड रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन. और मे बी जो यहाँ पे हमने डाइज के टाइप्स मैंशन किए हैं, द मैंशन द टाइप्स ऑफ द डाइज, मे बी फ्रॉम दिस सेक्शन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सच एज द व्हाट इज द बेसिक डाई, व्हाट इज द एसिड डाई, देयर प्रॉपर्टीज, देयर मैथड, देयर फास्टनेस. सो वन बाय
one we are dealing every dyes. In today video we are only discuss with the basic dye. In another video we are discuss with the some other dyes continuously. So when we are talking about the dyes, so there is a term that is the azo dye. Azo dye is presently banned by the government because हाँ एक ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है जब हम सिंथेटिक डाई की बात करते हैं तो सिंथेटिक डाई वो डाई होती है जो बेसिकली आपके केमिकल कंपाउंड से ही बनी होती है. देयर इज़ नथिंग नेचुरल, यहाँ पे कुछ भी नेचुरल प्रेजेंट नहीं होता है. सो एवरीथिंग इज़ केमिकल. तो समटाइम्स केमिकल्स रेशियो और केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर द बॉडी. सो एजो डाई इन दैट कैटेगरी वेयर गवर्नमेंट बैंड दिस डाई बिकॉज दिस डाई इज कॉजिंग सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी सच एज कैंसर डिजीजेज एंड ऑल. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली एजो डाइज को बैन कर दिया. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज द बैन डाई वेयर वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल व्हाई गवर्नमेंट इज बैंड एजो डाइज एंड what is the reason behind that and what we presently industry are doing regarding the azo dyes. So we will discuss it later. Presently we will discuss about the synthetic dye कि synthetic dye क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एज वी कैन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डाई एंड ऑल्सो सम फॉर्म्स ऑफ डाई आर ऑल्सो अवेलेबल. सो वी विल लेटर डिस्कस अबाउट दैट. डोंट कन्फ्यूज विद द टाइप्स ऑफ डाइज and forms of dyes. So there is some similar things between the types of dye and forms of dyes. So be clear with these things कि forms क्या होते हैं और types क्या होते हैं. तो today we will discuss about the first one that is the basic dye. When we are talking about the basic dye there is one another name also used for the basic dye that is the cationic dye. जब हम basic dye की बात करते हैं तो basic dye में एक नेम और यूज़ होता है उसको हम cationic dye भी कहते हैं. तो this can be asked in the exam कि basic डाई इज ऑल्सो नोन एज अ कैटियोनिक डाई. अब इसको कैटियोनिक डाई क्यों बोलते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो क्या होती है बेसिक डाई? व्हाट इज द बेसिक डाई? सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कलर्ड ऑर्गेनिक एसिड बिलोंग टू एनिलिन ग्रुप ऑफ डाइज. तो बेसिकली अगर जब हम बेसिक डाई की बात करते हैं तो बेसिक डाई में क्या होता है सोडियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं कलर ऑर्गेनिक एसिड से बिलोंग करते हैं जो कि एनिलिन ग्रुप से होता है. अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बेसिक डाइज और कैटियोनिक डाइज. पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दूसरा नेम क्या है सिमिलरली नोन एज. एक ये क्वेश्चन बनता है. दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. तो दिस इज द एनिलिन ग्रुप. यू कैन टेक एज अ मार्क एज अ नोट एज अ इन आर योर नोटबुक और वेयर यू कैन कंफर्टेबल विद दैट. सेकेंड थिंग इज दैट कि बेसिक डाई या कैटिनोइक डाई में क्या यूज़ होता है दैट इज़ द सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स जो कि कलर्ड ऑर्गेनिक एसिड से होते हैं और जिनका जो ग्रुप होता है वो एलिनिन ग्रुप का होता है. अब इसमें एक चीज़ और आती है जब हम बेसिक या कैटियोनिक डाई की बात करते हैं तो उसमें मॉर्डेंट बहुत ज़रूरी होता है डाई को यूज़ करने से पहले कि जो फैब्रिक है उसमें मॉर्डेंट यूज़ हुआ हो. इन आवर अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मॉर्डेंट क्या होता है वाई वी आर यूजिंग मॉर्डेंट इन फैब्रिक. सो प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो वाई वी आर डूइंग यूजिंग मॉर्डेंट ऑन द फैब्रिक. तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है क्वेश्चन इसमें हर एक की पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बिफोर यूजिंग द बेसिक डाई और कैटियोनिक डाई मॉर्डेंट शुड बी यूज और नॉट. मे बी इट कैन बी एज अ ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट. मे बी इट इज़ यूज एज अ assertion और रीजनिंग पार्ट. सो यू हैव टू क्लियर विथ ऑल these things. Now when we are talking about this dye, these are also called as a cationic dye as we earlier discussed. Because why we are calling it as a cationic dye, as we earlier see that it is a sodium and calcium salt of or it is belonging from this group. So that's why because in solution the basic dye molecule ionize causing its color component to become a cation positively charged radical. Definitely किसको हम cationic dye क्यों बोलते हैं because it charge जो होता है पॉजिटिव रेडिकल चार्ज होता है जो कि इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. बट नाउ द डेज क्वेश्चंस लेवल आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे. सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरी मैनर ऑफ द एग्जाम बिकॉज यू वांट टू बी क्लियर नेट JRF. सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग. When the basic dye are synthesized, the basic dye are used on wool, silk, but they had very poor color fastness property. See, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक तो इसको हम कैटियोनिक डाई क्यों बोलते हैं बिकॉज इट इज़ चार्ज एज अ पॉजिटिवली रेडिकल और इसमें कलर जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो बेसिक डाई होती है सिंथेटिक डाई होती है उसको हम डायरेक्टली किस पे अप्लाई कर सकते हैं वुल पे और सिल्क पे. ठीक है. तो इस वजह से इसमें लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम व्हेन वी आर अप्लाई
अप्लाइंग द बेसिक और कैटियोनिक डाइज डायरेक्टली टू द वुल एंड सिल्क, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फास्टनेस प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दैट इज़ वेरी पुअर। तो बेसिकली जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो बहुत जल्दी फेडेड हो जाएगा, उसका कलर बहुत जल्दी चला जाएगा। तो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सीन विद द बेसिक और कैटियोनिक डाई. It can be directly used on the silk and wool fabric. Basic dye was formerly used on cellulosic and protein fiber, as we have know that ki silk and all. So this is the also this can be options can be given कि उसको हम cellulosic और protein fiber के साथ use कर सकते हैं, but because they produce fugitive color. अब इसमें एक का टर्म ये भी आता है fugitive color that fade quickly. So you have to learn this terminology, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा पार्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो कई बार टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रॉम दिस सेक्शन इट कैन बी आस्क्ड कि बेसिक डाई जो होती है वो कैसी होती है, वो फ्यूगेटिव कलर होती है या ब्राइट कलर होती है या फास्ट कलर होती है। सो यू हैव टू टिक ऑन दैट कि ये फ्यूगेटिव कलर्स होते हैं। फ्यूगेटिव कलर्स क्या होते हैं? वो कलर जो जल्दी चले जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं। देयर पॉपुलैरिटी ऑफ दिस फाइबर हैज़ बीन डिक्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस कि अगर जब आप जो इस डाई को यूज़ करोगे तो बेसिकली कपड़ा जो है वो बहुत जल्दी फेडेड हो जाएगा, फैब्रिक जो है बहुत जल्दी फेडेड हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट रीज़न जो आपके कंज्यूमर्स होंगे, जो आपके कस्टमर्स होंगे, वो उसको क्या करेंगे? लेस यूज़ करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द about the basic dye or cationic dye, which is mostly asked in the exam. If you have any query, any question, you can ask on the comment box, or you can mail us svscholarsacademy@gmail.com, or for study material or anything you can also WhatsApp, that is a 7426888640. For I have mentioned in the earlier starting of the video. In later video we have continued with the other topic, other dyes, what is the application method and what these dyes are doing with the fabric. Thank you so much. Keep watching, keep listening, keep learning.